and second is bending stress. So we already discussed what is the direct stress and what is the bending stress. Okay, so direct stress means where axial stress will be produced. Axial stress means only the vertical or horizontal axis. When we get the elongation or compression only, where direct stress will be produced. But when a beam is are subjected to the bending or twisting, say, so we can say that this is not a concept of direct stress. Okay, because we get the shear stress as well as bending stress on that component where the force is not at the axis, means the force applied force is eccentric position of the axis. So I explained the concept with the horizontal beam and column, vertical column. Okay, so the basic difference between the beam and column, I will show you what is the basic difference between beam and column. Okay, because the shape and size is similar to each other, beam and column, but there is a basic difference where the sorry, where the beam and column differentiate to each other. So first of all, beam is used to bear the load of roof, and column is used to vertical load. So to understand the beam and column and stud, so there is three things for that I for the better explanation between difference between the beam column and stud. So beam column and stud, these are the concept which is used in building structures. So I'll show you the beam and column concept first because this unit is based on the beam and column. Okay, if beam is there, then beam is bent, and if column is there, long column is there. Okay, so this is the buckling. Okay, and there is very little difference between the column and stud. Okay, only the height is matter.
Stirred height is very less in comparison to column. Okay, so whatever these things you can better understand through this video, which is I am going to show you. So just wait. So go through first this video, and if your any doubt is remaining after visualization this video, then we can discuss. Have picked up this of a under construction building. You might have seen similar images around you in your nearby locality. Concrete frame structures are very common, or perhaps are the most common type of modern building structures internationally. The main aim of this lecture is to make you understand what are the names of the structural members, various structures members. So let's move ahead. This is the image that I have taken, a structural model of that. If you understand, the first most important member is the slab. What are slabs? Let me try to relate it in a very general way with you. Slabs are the members on which we sit, we stand, we walk, or we can say that they are the floor of a typical room in which we live. uh, Slabs eventually are connected or are transfers carry our load, and eventually they transfer the load to the beams. What are beams? Beams are the horizontal member. If you look on the roof, look above in a room, the horizontal members that surround the four corners of the roof, or like that surrounds the room, are the beams. You can visualize them as per the image that I have shown over here. The beams are eventually connected to the columns. What are columns? Columns are the vertical members of a typical building construction. Their main load is to their main utility is like they carry the load that is transferred to them from the beam. Then columns are eventually connected to the foundations. What are the foundations? Foundation, you can think it this way: they are the linking block between the superstructure. Superstructure, when I say, what I mean is the structure that is present above, superstructure that is present above the ground level. So they are basically the building block between the superstructure and the soil. All the load, all what I mean by load, when I say load, so this structure will be carrying humans, this structure will be carrying furniture, your household equipment, all that is considered as load. So that all the self weight of the structure that eventually need to be dispersed to the soil, which is eventually carrying the structure. So that is done through foundations. So these are foundations. So what we studied, we have slabs on which we stand, sit, or like which on which we rest. Then the slabs are connected, or the slabs are rested on the beams, which are the horizontal members as depicted in this image, which are eventually connected to the columns. These are the vertical members, eventually moving down to the foundations, which eventually is the linking block between soil and the superstructure. These are the three main, very most important structural members. Apart from them, there are some other structural members. One of them that I want to discuss will be with you are the shear walls. So shear walls in modern day construction, shear walls are mainly provided. What are shear walls? How are they different from columns? They can be thought of as a column, but they have very width is very high in comparison to column. Main aim why they are provided in typically high rise structure, there is heavy load that is coming due to lateral forces. What I mean by lateral forces? Lateral forces are the forces that are acting horizontally like this. So there are heavy forces that acts like in this direction due to maybe wind, or in case of earthquake, there might be forces that will try to shake the object in this direction. So these walls, or maybe like in a
in this direction. So these are walls that are provided to provide strength in lateral to against lateral forces. So these are another important members. You can imagine them as columns, but they are slightly different. They are provided with a different purpose in high-rise buildings. So typically, there are, I'll repeat, there are mainly three important component members: the beam, the slabs, the beams, and the slab, beam, column, and foundations. Shear walls are an additional members that I provide. Here I generally ask you guys, like out of beam and column, if I ask you which one is more important or which one needs to be more critically looked at while designing, you can pause the video and think for a while. Okay, I would answer to that. In my opinion, or what scientifically is found, that columns need to be critically designed, or look, the design of columns need to be looked after very consciously. The reason being, if we take an example of this beam and this column, you will find that, or we can say that if this beam fail, maybe this room might fail, or at max this floor might fail. But if this column fail, we can say that everything that is above this room might fail, or at max of this beam. So, student, as you see in this architecture, what is the main component are, because the main component, other things is just we create the walls and separate the room. But this structure is a foundation structure. Okay, see why we call these components lower component is the foundation component, because all the grating load is carrying to this foundation structure. So this foundation structure is very much important. Sorry, very much important for the stability of the structure. Okay, so why today I'm talking about the structure, because we talking about the concept of direct shear sorry, direct stresses and the bending stresses, which is we going to analysis, where we going to analysis of these bending and direct stresses on the beam and column. So before we applying these the load analysis of force analysis on the beam and column, so we have to must know what is the what is the concept behind the beam and column. Okay, first we know what is the reason where we applying the beam and column. So I show you one more video where you better understand what is the beam, column and studs. So just और आज का go हमारा through टॉपिक this. है डिफरेंस बिटवीन बीम कॉलम एंड स्ट्रट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ बीम्स। ओके, तो ये दोनों हम कवर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस बिटवीन बीम कॉलम एंड स्ट्रट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, बीम जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, कॉलम यहाँ पे वर्टिकल है एंड स्ट्रट भी यहाँ पे वर्टिकल है। तो यहाँ पे देखते हैं और डिफरेंस क्या है इसमें। So beam is a horizontal structural element subjected to load at the right angle to the axis। मतलब कि ये जो है एक्सिस होगी यहाँ पे, ओके यहाँ पे जो एक ये जो बीम की एक्सिस यहाँ पे होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्सिस है वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा बीम में। ओके, सो बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू द लोड एट द राइट एंगल टू इट्स एक्सिस। ओके, सो ये सबसे पहले बीम के बारे में। उसके बाद कॉलम। तो कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है,
Second is column, and column is a vertical structural elements and subjected to axial compressive force. And third one is strut. तो strut में क्या है friends? It is also vertical element and also having a axial compressive force. But the main thing is it is usually long. Column जो है वो generally long रहता है. So there is a possibility of buckling. अब buckling क्या है friends? कि अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है, अगर ये कॉलम की लेंथ ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो ये कॉलम में भी यहाँ पे इस तरह से बेंड हो सकता है या तो यहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड दी बकलिंग. और बकलिंग क्यों होता है? अगर कॉलम की लेंथ ज़्यादा है तो बकलिंग होने का चांसेस है. ठीक है, जो हमें डिज़ाइन में कंसिडर करना पड़ता है. दूसरा जो है स्ट्रट. तो स्ट्रट इज़ जनरली शॉर्ट, सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, क्योंकि इसकी लेंथ कम है. ठीक है, वो प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ जो अगर कम है तो यहाँ पे बकलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम है. अब जो लास्ट जो है वो है एग्जाम्पल. तो जैसे कि स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, हम बिल्डिंग्स उसमें देखते हैं तो हम उसमें ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं बीम्स. ओके, सो कॉन्क्रीट बीम्स इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, शाफ्ट दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ बीम, एंड कनेक्टिंग रोड, स्क्रू इन स्क्रू जैक. ठीक है, जो स्क्रू जैक में जो स्क्रू होता है या तो कनेक्टिंग रोड होता है उसको हम एज ए कॉलम हम बोल सकते हैं. एंड पिस्टन रोड, ठीक है, पिस्टन रोड जो है उसे हम एज अ स्ट्रट हम बोल सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बीम, कॉलम एंड स्ट्रट. Now next topic is types of beam. So first one is simply supported beam. So what do you mean by simply supported beam? तो यहाँ पे जो beam है, Students, you can see the difference between three components that is the important for us. So beam, column and studs. So beam, column and studs, the meaning is that beam is a horizontal component where a different type of load is applied, like a point load and UDL load, VDL load, okay, uniformly distributed load and varying distributed load, and inclined load. Sometime inclined load also apply, where that's I will show you. If the inclined load is applied, then we can dissolve these inclined load into the two component, vertical component and okay. So here we talk about the pure bending theory. And what is the main concept? Now we going to talk about the what is the main concept where the pure bending theory and what's the pure bending theory we could apply. So we can say that first of all, what is the pure bending theory? Means pure bending theory is nothing but where the other stresses is not produced. Only beam can bend due to the applied load. So, like a cantilever beam carrying a vertical load on its free end, then the beam is under the pure bending, or a simply supported beam and carrying a point load at its midpoint. This is also we can say that this is the example of pure bending. To more to know about more this bending concept,
So I will show you one more video. So may your concept is very clear. PC, mobile phone, a tank, and a trumpet all share the same theory of pure bending to achieve their final shape? This makes us wonder, what is the theory of pure bending? Before we jump in, check out the previous part of this series to learn about what are beams with internal hinges. Now, pure bending is a condition of stress where bending moment is applied to a beam without the simultaneous presence of axial, shear, or torsional forces. Pure bending occurs only under a constant bending moment m, since the shear force V, which is equal to the first derivative of constant bending moment m with respect to distance x, has to be equal to 0. In reality, this state of pure bending does not exist because such a state needs an absolutely weightless member. The state of pure bending is an approximation made to derive formulas. There are 6 assumptions to the theory of pure bending. First, the material of the beam is homogeneous and isotropic. Homogeneous means the material is of the same kind throughout, and isotropic means that the elastic properties in all directions are equal. Second, the value of Young's modulus of elasticity, E, is the same in tension and compression. Third, the transfer section, which are plane before bending, remain plane after bending also. Fourth, the beam is initially straight and all longitudinal filaments bend into circular arcs with a common center of curvature. Fifth, the radius of curvature is too large when compared to the dimensions of the cross section of the beam is free to expand or contract independently of the layer above or below it. In order to compute the maximum value of bending stress developed in a strain of loaded beam at a distance y from the axis using the theory of pure bending, we obtain a relation between maximum bending stress sigma max, internal bending moment m, and the second moment of inertia I. It is expressed as sigma max equals the product of m and c divided by I. What flexural formula for straight beams is. So like, subscribe and comment with your feedback to help us make Students, in this video, we can see what are the examples of pure bending. Means your mobile phone, your hexaphone, your some musical instruments, which is the example of pure bending, where there is no compressive strength, stress or tensile stress will be produced. Okay, and pure bending concept is depend on only the moment. A component is undergoes the bending load only. There is no tensile load, there is no compressive load. Okay, so now I can explain you by a video where the pure bending of a beam is more conceptualized. Your concept is clear more about the what is the concept of pure bending in the bending stresses. आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये प्योर बेंडिंग ऑफ बीम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। हम लोग आज बात करेंगे
दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक तो फाइंड करना है हम लोगों को व्हाट इज प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। एक तो इसका आंसर हम लोग आज सर्च करेंगे और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो अजम्पशंस की बात करेंगे। व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस used in theory of pure bending, in theory of simple bending, या फिर आप कह सकते हो प्योर बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग या फिर इसी को प्योर बेंडिंग। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज के इस वीडियो में फाइंड करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे बीम का। हम लोग क्या करेंगे, एक बीम बनाते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बीम बनाता हूँ। मान लीजिए ये कोई बीम है, ये एक बीम है और एक सपोर्ट यहाँ पे है और एक सपोर्ट यहाँ पे है। ये पॉइंट सपोर्ट यहाँ पे रोलर लगा दिया है और एक लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। लेट सपोज ये लोड है 10 किलो न्यूटन। आप यहाँ पे W भी ले सकते हो, 10 किलो न्यूटन, और एक लोड यहाँ पे भी लगा दिया। क्योंकि डायरेक्ट डेफिनीशन लिख देने से आप प्योर बेंडिंग की डेफिनीशन तो पढ़ लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, इसलिए एग्जांपल लेना ज़रूरी है। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट A, B, पॉइंट C एंड D, दीज आर द 4 पॉइंट्स। तो AB डिस्टेंस हमारा है 1 मीटर, BC इज 2 मीटर एंड CD इज 1 मीटर। ये लेंथ है बीम की, अलग अलग पार्ट की। इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम इस बीम का रिएक्शन फाइंड करेंगे तो हमें जो रिएक्शन मिलेगा एट पॉइंट B, हमें रिएक्शन जो मिलेगा ये पॉइंट B पे 10 किलो न्यूटन और पॉइंट C पे जो रिएक्शन आएगा RC, ये भी आएगा 10 किलो न्यूटन। आप इसका रिएक्शन फाइंड करके ट्राई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये एक सिमेट्रिक बीम बन रही है, इसलिए इसके दोनों रिएक्शन जो हैं RB और RC सेम आएंगे, 10 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन। तो अगर हम इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो उसका शेप कैसा होगा। आप लोगों ने चैप्टर 2 में या यूनिट 2 कह सकते हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा है बीम, जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओवर हैंगिंग बीम है ये। तो मैं यहाँ पे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक चल रहा है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम और यहाँ पे बात हो रही है SFD VMD की। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना इस डायग्राम के अगर मैं आपको प्योर बेंडिंग ऑफ बीम बता दूंगा तो अधूरा रहेगा, आपके समझ में कम आएगा। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है मैकेनिक्स में, और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो अगर इसका हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ये यहाँ पे 0 लाइन ड्रॉ कर दिया। तो हमें जो शियर फोर्स डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। पॉइंट A पे हमें मिलेगा -10 किलो न्यूटन, -10 किलो न्यूटन, और इसी तरह से पॉइंट B के बाद पॉइंट C पे जो वैल्यू आएगी ये भी आ जाएगी 0, और फिर C पे जो दूसरी वैल्यू आएगी, पॉइंट C पे जो दूसरी वैल्यू आएगी ये आएगी +10। यहाँ मिलेगा हमें +10 कुछ इस टाइप से, और पॉइंट D पे +10 एंड देन 0। तो कुछ इस तरह से इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। अब इसको आप समझिए, शियर फोर्स डायग्राम जो बना ये समझिए। तो ये आपका पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, तो A और B के बीच में ये शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है। देन पॉइंट B और C के बीच में शियर फोर्स क्या है आपका, 0 है।
पॉइंट बी और सी यानी पार्ट बी सी जो है इस बीम का, यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, 0 है। देन पार्ट सी डी में ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है। तो इस तरह से इसका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब जरा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लीजिए ये कैसे बनता है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम इस बीम का बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। हमें जो पार्ट ए बी का बीएमडी मिलेगा ये एक इंक्लाइंड लीनियर मिलेगा जो कि -10, और देन पार्ट बी सी हमारा कांस्टेंट होगा, पार्ट बी सी हमारा कांस्टेंट, और फिर से पार्ट सी डी हमारा इंक्लाइंड लीनियर होगा। ये पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो इस तरह से कुछ बीएमडी बनेगा, इस तरह से कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा ये। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है इसको जरा ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा समझना जरूरी है आपके लिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें पार्ट ए बी में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है यहाँ इंक्लाइन लीनियर है, लेकिन पार्ट बी सी का जो बीएमडी है ये कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ। पार्ट बी सी, पार्ट बी सी का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और शियर फोर्स क्या है पार्ट बी सी में, 0 है। शियर फोर्स क्या है, 0 है। यानी जो हमारा पार्ट बी सी है इस बीम का, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट बेंडिंग है, कोई भी शियर फोर्स नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो शियर फोर्स। तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिला, यहाँ से जो आउटपुट हमें मिल रहा है पार्ट बी सी के लिए, अगर हम इसको लिखना चाहें पॉइंट्स में तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ। फॉर पार्ट बी सी there is no shear force, no shear force, no shear force, कोई भी shear force नहीं है। किसके लिए, पार्ट बी सी के लिए। ये पार्ट सी है, यहाँ भी लिख दो, ये सी लिखा हुआ है। पार्ट बी सी के लिए कोई भी shear force नहीं है, देयर इज नो shear force। while जबकि, while का मतलब जबकि, while bending moment is constant, while bending moment is constant। पार्ट बीसी के लिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, जबकि शियर फोर्स क्या है, 0 है। तो ऐसा पार्ट जहां पे शियर फोर्स हमें, यानी शियर स्ट्रेस आप कह सकते हो, इस पार्ट में शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस इस पार्ट में 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो दैट लेंथ ऑफ बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो मैं कह सकता हूं, डेफिनेशन अब यहां से मिल गई, द पार्ट या लेंथ, द पार्ट या फिर आप कह सकते हो लेंथ ऑफ बीम where only bending stress are set up, that part is called pure bending of beam. So the part of beam where only bending stress are set up, that is called in pure बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि शियर स्ट्रेस क्या होगा इस पार्ट में, शियर स्ट्रेस विल बी 0। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा डेफिनेशन यहाँ आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन आपको नहीं लिखना, आपको समझना ज़्यादा है कि व्हाट इज प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। द बीम, आप कह सकते हो कि द पार्ट ऑफ बीम वेयर शियर स्ट्रेस विल बी 0 एंड ओनली बेंडिंग स्ट्रेस आर सेटअप, या फिर आप कह सकते हो ओनली बेंडिंग स्ट्रेस आर एग्जिस्ट, दैट पार्ट ऑफ बीम इज कॉल्ड
प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो यहाँ पे पार्ट बी सी हमारा क्या है, प्योर बेंडिंग है, क्योंकि पार्ट बी सी में शियर फोर्स जीरो है। शियर फोर्स जीरो का मतलब शियर स्ट्रेस जीरो होगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट। तो हमारा पार्ट बी सी क्या है, पार्ट बी सी हमारा प्योर बेंडिंग ऑफ बीम है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। अब बात करते हैं अजम्पशंस यूज्ड इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को फाइंड करना है, चलो बेंडिंग स्ट्रेस हम लोगों को फाइंड करना है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसके अजम्पशंस पता हों। व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अजम्पशंस यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग। जो फर्स्ट अजम्पशंस है, हम सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बीम है, मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, तो हमारा जो बीम है ये जिस भी मटेरियल का बना है, ये जो बीम है हमारा किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो क्या है, होमोजीनियस है, यानी मटेरियल ऑफ बीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी मटेरियल जो बीम का है वो थ्रू आउट सेम है, एंड आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। तो मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपकी जैसे यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये सभी क्या है, इक्वल है इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस का मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम है। ये तो हो गया फर्स्ट अजम्पशंस। सेकेंड अजम्पशंस क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यानी यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को आप लोग जानते हो कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस, या फिर इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम, इज सेम इन टेंशन, टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन एंड कंप्रेशन का मतलब ये है, ये भी आप नहीं समझोगे। अगर हम इस बीम को बेंड करते हैं, इस पे मान लीजिए कोई मोमेंट लगाते हैं, इस पे क्या करेंगे, बीम पे मोमेंट लगा देते हैं, तो होता क्या है, इस बीम, ये जब बीम ऐसे बेंड होती है, कुछ इस टाइप से मान लीजिए बेंड हो रही है बीम, ये इस अजम्पशंस को समझने के लिए ऐसे समझो। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो लेयर है ये कंप्रेस्ड हो रही है, ऊपर की जो लेयर है कंप्रेस्ड हो रही, और नीचे की लेयर में क्या हो रहा है, नीचे की लेयर में टेंशन हो रहा है, नीचे की लेयर में टेंशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो सेकंड अजम्पशंस है वो ये है कि यंग्स मॉडुलस जो है ये डिफरेंट लेयर्स है बीम की, ये अलग अलग लेयर्स है, ये बीम की अलग अलग, इस तरह से बीम बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना हुआ है। तो जो यंग्स मॉडुलस है ये सेम है इन कंप्रेशन एंड टेंशन। ये हमारा सेकंड अजम्पशंस होता है। इसके बाद आइए बात करते हैं थर्ड अजम्पशंस की। थर्ड जो हम अज्यूम करेंगे, ईच लेयर ऑफ बीम, ईच लेयर, आप जानते हो बीम बहुत सारी लेयर्स से मिलके बनी हुई है, यहां मैंने दिखा दिया। तो ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपैंड, फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी लेयर किसी दूसरी लेयर पर डिपेंड नहीं करती, सभी लेयर फ्री हैं टेंशन में या फिर कंप्रेशन में। जो टेंशन में होंगे वो वहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और जो कंप्रेशन में जो लेयर होगी वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। ये तब होता है जब हम बीम को बेंड करते हैं। बीम पे आप जानते हो जब लोड लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ इस पार्ट में देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों जनरेट हो रहे थे। पार्ट बीसी में शियर फोर्स जीरो था, इसलिए शियर स्ट्रेस क्या हुआ, जीरो, जबकि पार्ट बीसी में बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट मिल गया था, तो यहाँ पे कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट अजम्पशंस है, अजम्पशंस नंबर 4 मैं इसको लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप जानते हो जब बीम आपकी बेंड होगी, जब बीम सभी क्या है, एक सर्कुलर आर के शेप में बेंड हो रहे हैं, तो इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। रेडियस ऑफ
curvature radius is larger as compared to cross section of beam। वैसे ये assumptions आपको बुक में भी मिल जाएंगे, तो ये आप बुक से भी नोट कर सकते हो, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए मैं इस लेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो लेयर है हमारा, इस लेयर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये डिस्टेंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये लार्जर होगा एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, ये तो ये वाला जो पार्ट है ये बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे रेक्टेंगुलर है, अगर हम साइड से देखेंगे साइड व्यू इसका जो है ये होगा, फ्रंट से हमें क्रॉस सेक्शन पूरा नहीं दिखता है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये लार्जर होगा एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। एक एजम्पशंस और बताते हैं आपको, इसको मैं लिख रहा हूँ एजम्पशंस नंबर 5। एजम्पशन नंबर 5 ये है कि लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि जब हम लोड को रिमूव करते हैं तो मटेरियल क्या करता है, रीगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को। तो लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस तरह से बहुत सारे एजम्पशंस हैं, जैसे नो लेटरल स्ट्रेन, ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर जनरेटेड। इस तरह से आप बहुत सारे एजम्पशंस और भी लिख सकते हो, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। कम से कम 5 एजम्पशंस आपको पता होना चाहिए जो मेजर एजम्पशंस हैं, जिसको हम लोग यूज करेंगे ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो प्योर बेंडिंग ऑफ बीम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पे बात किया, व्हाट इज प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। आप बताओगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होता है, ओनली बेंडिंग स्ट्रेस सेटअप होता है, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, वहाँ पे हमारा प्योर बेंडिंग ऑफ बीम होता है। एजम्पशंस क्या है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के, तो दीज आर द 5 मेजर एजम्पशंस। और भी एजम्पशंस लिए जाते हैं, आप बुक से उसके पढ़िएगा, लेकिन ये 5 मेजर एजम्पशंस हैं जिसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस। So, okay, students, according to these, if you have any doubts, then you can ask your question now.